स्टार्ट हो गई आई गेस. अच्छा. सो कॉलम बकलिंग, the first thing that comes into your mind, किस किस किस्म की लोडिंग होगी, किस किस्म की हमारे पास बेसिकली बेसिकली कॉलम बकलिंग आपका फिनोमिना है कि कॉलम जो कि कंप्रेसिव मेंबर है, कंप्रेसिव लोड्स को सहता है. तो ऑल दो ये मे बी जी अब्दुल बासित, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग बेसिकली. ठीक है. सो कॉलम बकलिंग का जो फिनोमेना है वो हमारे पास जब कॉलम पे कंप्रेसिव लोड्स लग रहे होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कॉलम की लोडिंग के दौरान जिस पे वो उस लोड को सह नहीं पाता और बैंड हो जाता है. ठीक है. दिस इज बेसिकली द कॉलम बकलिंग. It is at particular load P, it will start buckling. तो कॉलम्स की बकलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है इन टर्म्स ऑफ के स्ट्रक्चर बेसिकली आपके कॉलम्स पे ही खड़ा होता है, बीम्स सारी आपकी कॉलम्स पे खड़ी होती हैं. सो अगर स्ट्रक्चर में आपकी बकलिंग का फिनोमेना आ सकता है या उसके चांसेस हैं, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड डिज़ाइन स्ट्रक्चर. आपको बेसिकली आपने स्ट्रक्चर को या स्पेशली कॉलम्स को बकलिंग के खिलाफ महफूज करना है. So that is our target. For that, we should know how buckling occurs and what is the critical buckling load for a column. So आज का जो हमारा एजेंडा है लेक्चर का, उसमें भी हम बेसिकली क्या करेंगे, we will have to describe the behavior of members subject to axial compression. जो कॉलम है वो कैसे बिहेव करता है एक्सियल कंप्रेशन जब उस पर आती है. And secondly, we will derive the critical or ideal load equation. So this will be the equation uh, from which we can calculate the uh, buckling load or critical buckling load, for which in future we will have to design the column. Secondly, we will also discuss about the support conditions, how the support conditions influences this particular column behavior. Okay? And also we will discuss describe the support condition which influence the critical buckling load. So what any member that is in compression, pure compression, we generally deal it as a column. Okay. So you can see over here there is a member. There is a member we have, and we applied some load P on it. Okay, that is in compression. So after some time, a point will be reached where this stable equilibrium point will will be crossed, after which we will get enter the region of unstable equilibrium. That particular point is known as bifurcation point. Okay, so from here we basically transgress from neutral equilibrium to unstable equilibrium. So at this point, whatever the load is, basically the load P, whatever the load P is, that is actually our critical load, and be denoted by PCR. So what is critical load? It is a maximum internal load in compression that a column can support just before buckling. So PCR is the buckling load. Okay, critical buckling load. Okay, we will derive an equation which is called Euler buckling equation, and we need some assumptions for that. सबसे पहले हमने ये एज्यूम करना है कि हमारे पास पिन सपोर्टेड आइडियल एक कॉलम है. आइडियल कॉलम का मतलब ये है कि उसमें किसी किस्म की इसेंट्रिसिटी नहीं है, किसी किस्म की उसमें क्रूकेडनेस नहीं है. क्रूकेडनेस का मतलब ये हुआ कि वो कहीं से आपके पास कॉलम बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट है, उसमें कोई imperfection नहीं है. ठीक है. So that is actually crookedness. So it's perfectly straight
जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो दैट इज़ थ्रू द ज्योमेट्रिकल सेंट्रॉइड, ठीक है, उसमें कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, एंड द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज़ होमोजीनियस एंड लीनियर इलास्टिक। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, सेकेंड ऑर्डर डिफ्लेक्शन, दैट इज़ डी स्क्वेयर वी और डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ओवर आई, दैट इज़ मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप बेसिकली, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम की। सो व्हाट हैपन्स, जब आप इस कॉलम पर एक लोड P अप्लाई कर रहे हैं एंड दिस कॉलम इज ऑफ लेंथ L, ठीक है, कॉलम इज ऑफ लेंथ L, so there will be a point when this P load crosses its capacity and this column will start to bend or to buckle, ठीक है, this column will start to buckle. So this is the ideal shape, normal shape of the column, and this is the buckled shape of the column. ओके, मैंने ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसको इधर जूम करके दिखाया है, ठीक है। जब आप इस पे ये लोड लगाते हैं, ये P, ठीक है, एंड दिस इज सम डिस्टेंस x फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द कॉलम up till some distance x, सो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होगी, वो बेसिकली बराबर होगी, इट विल बी सम फंक्शन ऑफ v ऑफ x। अगर हम ये x डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये जो दूसरा डायरेक्शन है हम दैट इज डिफ्लेक्शन इन x एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ x। सो हम इस कट पे बेसिकली इस कट पे हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास जो मोमेंट आता है वो क्या है, एक ये रिएक्टिव मोमेंट आएगा, ठीक है, इट विल बी m, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट इज़ पॉजिटिव। दूसरा ये जो P लोड का हमारे पास जो कंप्रेशन है वो भी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ v फंक्शन ऑफ x एक मोमेंट कास्ट कर रहा है। सो हियर इट इज़ P इंटू v ऑफ x इज इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास जो मोमेंट आता है दैट इज इक्वल टू माइनस पी वी ऑफ एक्स। ओके, सो हमने क्या किया, हमारे पास मोमेंट आ गया, हम इस मोमेंट को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, इसमें m की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। सो हमने क्या किया, सो वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है, डी स्क्वेयर वी और डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस पी वी और ई आर। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो वी गेट दिस इक्वेशन टी स्क्वेयर वी और टी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वी और ई आई इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट अ सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी सॉल्यूशंस बेसिकली आपने जो मैथमेटिक्स जो पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ी थी, सो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशन मालूम की थी। हम उस सॉल्यूशन को डिराइव करने में नहीं जाएंगे, वी विल बेसिकली वी आर कंसर्न विद द रिजल्ट्स ऑफ इट, कि इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रिजल्ट्स क्या हैं। तो इस पे जो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आता है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इस फॉर्म में आता है, v ऑफ x इज इक्वल टू c1 साइन ऑफ दिस p over ei into x and c2 plus c2 cos under root p over I ei min into x। हेलो, सर म्यूट कर दें उसको। अच्छा ठीक है।
सो हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाता है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आता है इस फॉर्म में। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आता है इस फॉर्म में। मतलब अगर जो हम v ऑफ x कैलकुलेट करना चाहें तो हमें इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये x डिस्टेंस तो हम वेरिएबल है तो हम ले सकते हैं फ्रॉम को वन एंड ऑफ द कॉलम टू द अदर एंड ऑफ द कॉलम। c2 की ज़रूरत है और बस बाकी p की वैल्यू हमारे पास होगी। p जितना लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी e हमारे पास होगी, उसका i हमारे पास होगा। ठीक है, दैट दिस डेटा विल बी गिवन, this data we will pick as a variable and we need these C1 and C2। अब C1 C2 को हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं बाउंड्री कंडीशन से। जी सर ये अगर वी कोई जो है सवाल पूछना पॉइसन चाहे ना रेशो है। तो हाथ रेस करे। ठीक है, हाँ पूछे पूछे। सर ये जो वी है ये पॉइसन रेशो है, नहीं नहीं, दिस ये इज क्या नॉट है सर पॉइजॉन्स ये? रेशियो, दिस इज बेसिकली डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन अदर डायरेक्शन। अगर हम कॉलम की लेंथ को वेरिएबल x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, x से, तो उसकी जो डिफ्लेक्शन बकलिंग डिफ्लेक्शन होगी तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज सम फंक्शन ऑफ दिस x। सो उसको हम v ऑफ x हम उसको उससे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। अब ये v ऑफ x हम कैलकुलेट करते हैं। जो सोल्यूशन हमारे पास आया उसमें हमें c1 और c2 की ज़रूरत है। सो ये c1 और c2 जो दो कांस्टेंट्स है वो हमारे पास कैसे आते हैं, वो हम बाउंड्री कंडीशन से मालूम करते हैं। ठीक है, अगर x डिस्टेंस 0 हो तो हमारे पास v ऑफ x इज बेसिकली डिफ्लेक्शन। ठीक है, सो इट्स डिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो विच मीन्स के, let me erase this all ink so that it's clear। अगर हमारे पास ये x डिस्टेंस जो है, ये x डिस्टेंस ये 0 हो, इस मतलब इस सपोर्ट पे बेसिकली हम खड़े हुए हैं, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या आएगी, डिफ्लेक्शन हमारे पास 0 रहेगी। इस सपोर्ट पे बेसिकली डिफ्लेक्शन 0 है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी। सो एट वन सपोर्ट, एट दिस पर्टिकुलर सपोर्ट हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है। तो जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर लें यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे और यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, कॉस यहाँ पे 0 पुट कर ले, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, C2 और ये हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास C2 इक्वल टू 0 एट द एंड आ जाएगा। ठीक है, अगर लेट अस सॉल्व इट। अच्छा, हम कह रहे हैं कि v ऑफ x अगर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, इट विल बी सम वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या आती है। तो अगर सपोर्ट कंडीशंस को हम ऑब्जर्व कर लें तो एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस जब x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो इस कॉलम की लेंथ है l। ठीक है, अब जब x इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास डिफ्लेक्शन कितनी आएगी, v ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम अगर दोबारा इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास यहाँ हमने 0 पुट किया। ठीक है, सो दिस होल टर्म बिकम्स 0, c2 cos 0, so this is equal to 1, cos of 0 is 1, so it becomes c2 into 1। अब ये टर्म रह जाता है यहाँ पे, साइन 0 बेसिकली किसके बराबर है, 0 के बराबर है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बच जाती है, C2 इक्वल टू 0 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी जो बाउंड्री कंडीशंस है वो है अगर हम उसका पूरा लेंथ दूसरे सपोर्ट पे हम उसकी वैल्यू डिफ्लेक्शन की चेक करें, दूसरे सपोर्ट पे भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है। when you put x इक्वल टू एल, x इक्वल टू एल का मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं,
सो दोबारा चूँकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है तो सपोर्ट पे हमारे पास डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है। व्हाट वी डू, अच्छा इसमें हम ये यहाँ पे x की जगह क्या कर लेते हैं, l रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब l चूँकि ये तो पहले c2 इक्वल टू ज़ीरो आ चुका है तो इसमें हम c2 इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेते हैं, तो सो दिस टर्म्स बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। c2 हमने मालूम किया ना यहाँ से, तो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हम v x इक्वल टू एल पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आएगी तो वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब हो गया क्या, उस वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन बेसिकली v ऑफ एल इक्वल टू ज़ीरो ही है। अब तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं।